Okay, students, today we are going to discuss about the poem The Legend of the Northland. Okay, this is a very interesting poem, I must say, and I just want you all to hear it and try to understand it. Okay, this is a very different kind of poem. We generally, जो अभी तक हमने poems पढ़ी हैं, for example, we have studied The Road Not Taken, The Wind, तो उनमें और इस poem में बहुत difference है, ठीक है? And the main difference is that the Legend of the Northland is written as a ballad. Ballad क्या होता है? Ballad होती है एक poem, एक song की तरह इस poem को लिखा जाता है और इस पोएम के अंदर एक स्टोरी को शो किया जाता है, ठीक है? तो बैलेड के अंदर हमेशा शॉर्ट स्टैंजास के अंदर एक पोएम होती है और उस पोएम के अंदर एक स्टोरी को प्रोजेक्ट किया जाता है। ऐसे ही द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के अंदर भी एक स्टोरी को प्रोजेक्ट किया गया है एंड दिस कंप्लीट पोएम कंसिस्ट ऑफ अराउंड 16 short stanzas. Okay, the poem is very lengthy, but you don't have to be afraid of it because it is very easy and it is very interesting. Okay, so today I'm going to tell you the story of the poem और उसके बाद we will go on to reading the poem line by line. Okay, so the story is basically about a saint, ठीक है? सेंट पीटर। अब अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो टाइटल के अंदर ही आती है बात द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड लेजेंड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लेजेंड? एनीवन can tell me what do you understand by the word legend? ओके, नॉर्थलैंड, जब नॉर्थलैंड आप सुनते हो तो कैन यू गेस एनीथिंग? Any guesses when you hear the word Northland? No? See, legend का मतलब होता है एक पुरानी कोई स्टोरी, ठीक है? Legend is basically an old story जिसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया है and Northland means that the story which we are going to talk about belongs to a place which is situated in the extreme north of our earth, ठीक है? नॉर्थलैंड हम बोलते हैं, जहाँ आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के अंदर दो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। So when we are talking about the Northland, we are basically talking about the land which is on the North Pole, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। ओके, there are 2 points na, Arctic and Antarctic. So there is no life in Antarctic, there is no life in the southern region of our earth, but there are people living in the northern hemisphere, there are people living near the northern pole of our earth, ठीक है? And we all know that the rays of the sun do not fall directly on the both of the poles. That is why both the poles are extremely cold in temperature. तो यहाँ पर जो हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही नॉर्थलैंड में जो आर्कटिक है वहां की एक जगह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड बिकॉज इट इज इन नॉर्थ, इट clearly suggests that the place is full of ice, snow, and it is very chilling out there, ठीक है? तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि देयर वाज अ सेंट and the saint was very known for his work that he had done, and उनका नाम क्या था? उनका नाम था सेंट पीटर, ठीक है? and he was one of the apostles of Jesus Christ. Now what do you mean by apostles? Apostles का मतलब होता है
a person who carries the message. He was basically the messenger of God, and he was taking the message of Jesus Christ around the world. तो ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे उसी टाइम पर, पूरे जब अर्थ का वो चक्कर लगा रहे थे टू spread the message of Jesus Christ. He reaches a place in Northland, and वहां पर he has a conversation with a lady, or that conversation obviously does not go really well, and the entire story is about their meeting. Okay, तब होता क्या है कि सेंट पीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जीसस क्राइस्ट के मैसेज को स्प्रेड करने में लगे हुए हैं, वो नॉर्थलैंड के एक छोटे सी जगह पर एक विलेज में पहुंचते हैं, एंड बिकॉज ही वाज वॉकिंग काफी टाइम से, सो ही वाज वेरी टायर्ड एंड ही वाज वेरी हंग्री. तो उसने देखा कि उस गांव के एक घर के बाहर एक लेडी है, वो केक्स बेक कर रही है. ठीक है, वो केक्स बना रही है, पाइस बना रही है बेसिकली. एंड तो सेंट पीटर को लगता है कि क्यों ना मैं इससे कुछ खाने को मांग लो, तो आई वुड बी फाइन. तो वो उसके पास जाते हैं और वो उसको बोलते हैं, नो दैट आई एम वेरी हंग्री एंड आई नीड समथिंग टू ईट, कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ अ केक. तो वो लेडी उसको देखती है, एंड देन शी वो अपने मन मन में सोचती है कि ठीक है, एक छोटा सा केक दे देती हूँ, क्या जाता है. तो वो एक छोटा सा, जो नॉर्मल साइज के केक बना रही थी, उससे छोटे साइज का वो एक केक बनाती है. वो बन जाता है, जब जैसे वो देने को होती है ना, उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है इसके लिए, उसको और छोटा करती है, उसको साइड में रख के और छोटा केक बनाती है. जब वो केक देने की बारी आती है तो उसको लगता है कि ये भी बहुत बड़ा है, तो वो उसको रख के एक और बनाती है. एंड ऐसे करते 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 फाइनली शी अराइव्स ऑन अ केक विच इज एज थिन एज अ वेफर. नाउ व्हाट इज अ वेफर? योर चिप्स जो आप डेली खाते हो. तो फाइनली इतने पतला केक बना देती है, और फिर भी उसको ये लगता है कि ये भी उसके लिए ज्यादा है, तो वो उसको भी उठाकर शेल्फ पे रख देती है, और वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं दे सकती. तो उसके इस पूरे के पूरे जो उसने प्रोसेस किया ना, इस प्रोसेस से जो सेंट पीटर थे, उनको बहुत गुस्सा आया. he got so angry with her कि उन्होंने उसको एक श्राप दे दिया, and he converted that lady into a woodpecker. और जैसे ही उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, दैट लेडी चेंज्ड इनटू अ बर्ड, वुडपेकर. और जो उसके घर की चिमनी थी, वो उस चिमनी में से निकलकर बाहर निकली, एंड द ओनली थिंग which was left on her body was her cap. और बाकी उसके सारे जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो चिमनी में जलकर राख हो गए, एंड दैट हैट वाज द ओनली थिंग जिससे उसको पहचाना जा सकता था. ठीक है, एंड ही कर्स्ड दैट लेडी दैट बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू गिव एनी फूड टू द सेंट, तो शी विल कीप रोमिंग इन द फॉरेस्ट, एंड शी विल कीप pecking the woods to find her food. ठीक है, बेसिकली इट वॉज अ कर्स फॉर हर, इट वॉज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट फॉर हर. तो वो वहां से निकल कर उड़ गई, एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स फिर दिखाते हैं that there are few children who are playing near the forest, and वहां पर वो उस woodpecker को देखते हैं, and that woodpecker is still wearing that hat, which signifies that it is the same bird which was cursed by the Saint Peter. Okay, so it shows the moral that this poem gives, that this story gives, is one person should not be greedy. She was greedy, वो लालची थी, तो उसको हर बार ऐसा लग रहा था कि ये केक भी बड़ा है, ये केक भी बड़ा है, इसको भी अपने पास रख लेती हूँ. So that greed that she showed towards the saint was uh, not appreciative at all, and that was the reason Saint Peter gave her a curse. Okay, and another thing which comes out through this poem is that what if that lady was aware of the abilities of Saint Peter? अगर उसको पता होता कि ये सेंट पीटर हैं एंड ही इज केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ पावरफुल थिंग्स, डू यू रियली थिंक वो तब भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव करती?
नहीं, कभी नहीं करती. She would have presented everything that she had in her house to saint if she knew that he was so powerful. तो जब हमें किसी चीज का पता होता है और उसके लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, so that is not counted in your good deeds. बट अगर आप बिना किसी को जाने किसी की मदद करते हैं, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को सेटिस्फाई करते हैं, so that is the most important thing. That is something which will build your character. That is something will help you in achieving the greater goals in your life. Okay. अब हम अपने दोस्तों की तो सब मदद कर देते हैं, बट रास्ते में जाने वाले किसी भिखारी की मदद करके देखो, यू विल फील अ लॉट मोर सेटिस्फाइड. ओके. So this was the quick summary of the poem, and I hope Ma'am.